हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा डिफेंस ऑफ अक्टूबर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs, both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gain today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you, both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month, both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important, very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes, they are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say, 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रा शक्ति की। मित्रा शक्ति अभी रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मित्रा शक्ति, अभी हमने कल एक वीडियो में क्वेश्चन देखा था जिसमें आपसे पूछा गया था कि पर्टिकुलर सो एंड सो एक्सरसाइज की, मिलिट्री एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन अभी कंडक्ट कराया गया था सो एंड सो प्लेस पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको एडिशन भी पता होना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप एडिशंस भी नोट डाउन करके चलिए। मैं हर बार एडिशंस कराता हूँ, आपको नोट डाउन करिए और हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। ठीक है, प्लीज़ अवॉइड दैट, कॉल आ गया था। तो देखिए, 8th एडिशन इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ मित्रा शक्ति एक्सरसाइज का। और कहाँ पे हुआ? लोकेशन रहेगी श्रीलंका में ही एक्सरसाइज हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच की आर्मीज़ के बीच में रिलेशनशिप बढ़े। 12 दिन का ये एक्सरसाइज रही थी। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये तो गई मित्रा शक्ति। अब आ जाइए, आपकी एक्सरसाइज आ जाती है इंडिया और जापान की। बताइए क्या नाम रहेगा? जिमेक्स।
जिमेक्स ये एक्सरसाइज रहेगी जो कि इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट कराई गई थी। 5th एडिशन था इसका और लोकेशन रहेगी अरेबियन सी। काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। 4-5 चीजें पूछी जाती हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज से, या तो किन कंट्रीज के बीच में, या फिर उसकी लोकेशन पूछ लेंगे आपसे, या फिर पूछ लेंगे कि वो कौन सा एडिशन का है। तो सारा कवर हो गया आपका। ये एक मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज थी, अरेबियन सी में हुई थी, इंडिया और जापान के बीच में हुई थी। जिमेक्स इसका नाम रहेगा और 5th एडिशन की ये एक्सरसाइज रहेगी। फिर अगर आप आपसे पूछे ये 5th एडिशन की इंडिया जापान की बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हुई थी, अरेबियन सी में हुई थी। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की साइड से किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया जिमेक्स एक्सरसाइज में, 5th एडिशन ऑफ जिमेक्स एक्सरसाइज में, तो याद रखना इंडियन नेवल शिप कोची ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से जिमेक्स 2021 की 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ने। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एयरफोर्स डे, हम ये इंपॉर्टेंट डे में कवर कर चुके हैं कि 8 अक्टूबर को आपका एयरफोर्स डे मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एयरफोर्स डे तो हो गया। चलो अगर मैं अब आपसे पूछूं आर्मी डे बताओ मुझे, और नेवी डे बता दो। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ आर्मी डे कब होता है और नेवी डे कब मनाया जाता है, बताइए जरा। सबसे पहले बता दो आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आपका आर्मी डे मनाया जाता है। अब मुझे बता दो नेवी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है नेवी डे? नेवी डे आता है आपका दिसंबर में, 4 दिसंबर को। और रहा कौन सा? एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब मनाया गया? अभी हमने देखा 8 अक्टूबर को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, काफी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको अजय वॉरियर कहा जाता है। कहाँ पे हुई और किन के बीच में होती है? अजय वॉरियर इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है एंड लोकेशन रहेगी इसकी उत्तराखंड, मतलब इंडिया में ही ये कंडक्ट कराई गई थी। उत्तराखंड में इसको कंडक्ट कराया गया अजय वॉरियर को। इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम की सोल्जर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और इस बार कौन सा एडिशन था इसका? 6th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली इंडिया फरवरी 2022 में एक एक्सरसाइज, मैरीटाइम एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराने वाला है, जिसका नाम रहेगा एक्स मिलान। एक्सरसाइज मिलान के नाम से इंडिया इसको होस्ट करेगा। और इंडिया की कौन सी फोर्स होस्ट करेगी? इंडियन नेवी इसको होस्ट करने वाली है, ठीक है, एक्स मिलान एक्सरसाइज को, जिसमें 46 नेशंस को इनविटेशन भेजा गया टू टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो इंडियन नेवी होस्ट करेगी। याद रखना इसमें क्वाड नेशंस भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्वाड नेशंस कौन कौन से हो गए? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये सारे आपके क्या होते हैं? क्वाड नेशंस होते हैं, क्वाड कंट्रीज कहा जाता है। फिर क्वाड, और एक चीज़ और इसमें याद रखना, इसमें इंडिया की तरफ से यूएसए पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। यूएसए को पहली बार पार्टिसिपेट करेगा इस मिलान एक्सरसाइज में, और ये इंडिया की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज रहने वाली है। ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज, मार्क दिस डाउन। फिर अगर हम अभी बात कर रहे थे क्वाड कंट्रीज की, कि इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्रीज में आती हैं। क्वाड कंट्रीज अपनी एक एक्सरसाइज करती है मिलकर, वो है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये मालाबार एक्सरसाइज आपको याद रखनी है कहाँ पे हुई थी? बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराई गई थी, ताकि चाइना की जो बढ़ती पावर है उस पर कंट्रोल किया जा सके, उस पर थोड़ा रोक लगाया जा सके, उसको दिखाया जा सके कि हम सारे बाकी नेशन एकजुट हैं, एक साथ हैं। तो अभी सेकंड फेज देखा गया मालाबार एक्सरसाइज का बे ऑफ बंगाल रीजन में, जिसमें पार्टिसिपेट किया था क्वाड कंट्रीज ने, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, सिमिलरली एक टर्म हो जाती है तो थी क्वाड कंट्रीज का, एक होता है ऑकस, अभी रिसेंटली बना था। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये ट्राइलेटरल एक एक्सरसाइज या फिर ट्राइलेटरल पार्टनरशिप थी, ऑकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास की। युद्ध अभ्यास एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जो कि इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स के बीच में होती है। एंड ये कहाँ पे हुई थी? अलास्का में इसको कंडक्ट कराया गया था युद्ध अभ्यास को।
नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक मेडन बायलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, मतलब तीनों फोर्स की, नेवी की, आर्मी की एंड एयरफोर्स, तीनों की ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। उनको बोला गया कोंकण शक्ति। तो अभी हम देखेंगे कि कोंकण शक्ति की जो नेवी का पार्ट था उसको कोंकण कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में कराया गया, नेवी की। ठीक है, तीनों पार्ट की एक्सरसाइज होगी, लेकिन नेवी की बात करें तो कोंकण कोस्ट ऑफ अरेबियन सी में इसको कराया गया। इंडिया एंड यूके की जॉइंट सर्विस एक्सरसाइज है कोंकण शक्ति। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 बीचेस को, इंडिया के 8 बीचेस को क्या मिला, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है, क्यों दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, वो देखते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है आपका इज गिवन बाय द कोपेनहेगन बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में दिया जाता है। FEE ये क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बीचेस को प्रिजर्व करने के लिए, उनको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से बचाने के लिए, कि जो लोग उसको ख़राब कर देते हैं, कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, वो ना करें, उससे रिलेटेड सेफ्टी इश्यूज मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, वहाँ का पानी ब्लू हो, वहाँ के जो कोरल रीफ्स हैं उनको इफेक्ट ना पड़े, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो क्राइटेरियाज क्या रहते हैं इस देने के लिए, कि वाटर क्वालिटी वहाँ पे कैसी है, क्या वहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छी है, क्या पे वहाँ पे कोरल रीफ्स फल फूल रहे हैं या नहीं फूल रहे, फिशेज वहाँ पे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोस्टल जोन इकोसिस्टम, नेचुरल सेंसिटिव एरियाज एंड कोस्टल जोन शुड बी डिस्प्लेड देयर, वहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस की बात की जा रही है नहीं की जा रही बीचेस पे। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, वहाँ पे जो रिसाइकल वेस्ट को रिसाइकल करा जाता है या नहीं, क्या वो बीच में ही फेंक दिया जाता है, क्या वो पानी में थ्रो कर दिया जाता है, क्या वहाँ पे क्लीन सैनिटरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं, कंट्रोल सीवेज डिस्पोजेबल है या नहीं, क्या वहाँ पे किसी फैक्ट्री का जो वेस्ट है क्या वो बीच के थ्रू क्या वो पानी में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो अगर अब हम बात करें 8 बीचेस को इंडिया की तरफ से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। इंडिया बिकेम वो पहली कंट्री जिसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, अवॉर्डेड द coveted इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 8 बीचेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में इनको ये दे दिया गया। जूरी, इंटरनेशनल जूरी कौन सी रही, जूरी होती है जो सेलेक्ट करती है, जो बताती है कि हाँ इन चीज़ों को, इन बेसिस पे, जैसे आपको फिल्म फेयर अवार्ड्स मिलते हैं तो जूरी डिसाइड करती है किस फिल्म को क्या मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे इंटरनेशनल जूरी क्या रही, UNEP, UNWTO, FEE एंड IUCN, इन सब ने मिलके इन बीचेस को क्या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया। नेक्स्ट आ जाता है शिवराजपुर। ये 8 बीच याद रखना, गुजरात का शिवराजपुर, दीव, दमन एंड दीव में से घोगला, कर्नाटका का कसरकोड, कर्नाटका का ही पदुबिद्री, कर्नाटका के 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। केरला का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच एंड अंडमान एंड निकोबार का राधानगर, इन 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया बाय FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क बेस्ड रहेगी। फिर हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। मित्रा शक्ति इंडिया और श्रीलंका भी हमने देखा। मैत्री शक्ति इंडिया एंड थाईलैंड। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये दोनों इंडिया एंड USA के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया। गरुड़ा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। धर्मा गार्डियन इंडिया एंड जापान। जापान की एक एक्सरसाइज अभी हमने ऊपर देखी, क्या थी, जिमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। फिर आ जाती है आपकी सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल के बीच में, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना के। सिम्बैक्स इंडिया सिंगापुर। शक्ति हम देख चुके हैं, इंडिया एंड फ्रांस, ये रिपीटेड है। और फिर आ जाती है कॉर्पेट इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। कॉर्पेट मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। Hello friends, through our recent general aware section analysis, we have identified that the news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. In order to cover related news to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey that information using interactive infographics. Here is an example of interactive infographics.
Using this, you can choose to study various information just from the single PDF. If you want to talk about the medal tally of Tokyo Olympic Games, just by clicking on the image of medals, you will be able to see the information related to medals. Now, if you want to study about any of the players mentioned here, just by clicking on the image of that particular player, you will be getting the information related to that particular player. Now, you will be provided with two types of PDFs. One is your desktop version and second is your mobile version. As the name suggests, desktop version is for both PCs, laptops, and your mobile version is basically for the mobile phones and tablets. In order to use your desktop version in mobile phone, you can use the software of WAPS application in your Google Play, and you can access the desktop version of the file in the phones also. So friends, this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. Our team has worked immensely hard to bring this to you, and so please do share your valuable suggestions and feedback through comments, as it will boost us to create further such initiatives. Thank you. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.